Assalamu alaikum. Today now we are going to discuss the next point from the rotational dynamics. आज हम रोटेशनल डायनामिक्स इस टॉपिक से हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमको ये मालूम रहना जरूरी है कि सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल pendulum? What is a simple pendulum? A heavy metal ball can be suspended by light inextensible string by a rigid support. It constitutes a simple pendulum. वो क्या बनाता है? सिंपल पेंडुलम बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग से जो अटैच किया हुआ है, इमेजिन कीजिएगा इसको जस्ट लाइक ए स्फीयर। इट इज ए मेटल स्फीयर, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ए inextensible light inextensible string with the help of rigid support. When it oscillates, then how it is oscillating? See here, it oscillates in this way. It performs to and fro motion. तो यहाँ पे इस तरीके से ये तो और फ्लो मोशन करता हुआ नजर आएगा। देखिएगा यहाँ पे एक परफॉर्म टू एंड फ्लो मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम? When a heavy metal ball suspended by light inextensible string by a rigid support, it forms a simple pendulum and it performs a oscillation, that is to and fro motion. Now what do you mean by conical pendulum? When a simple pendulum is revolved in such a way that its bob can revolve in a horizontal circle and the string is along the surface of the circular cone, then it constitute, ये बनाता है conical pendulum। यानी इसी सिंपल पेंडुलम को हम इस तरीके से घुमाते हैं कि इसका जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपको कोन के सरफेस पर आती हुई नजर आएगी, यानी कोन बनाती हुई नजर आएगी। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे यही सिंपल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम की तरह आपको नजर आएगा। सी हियर हाउ इट बिकम्स ए कोनिकल पेंडुलम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो हेवी मेटल बॉब है ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये जो थ्रेड है यानी हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एक कोन की शक्ल यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। यानी when a simple pendulum it can be revolved in such a way that the bob it is revolving in a circular motion and the string it is along a circular cone, then it constitute a conical pendulum. So I hope so that you understand what do you mean by conical pendulum. Now we draw the diagram for conical pendulum as per the board book. What is that one? I am drawing a diagram for conical pendulum. See carefully. So suppose our bob is at the A position, which is revolving in a horizontal circle. तो बॉब जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो वो पहुंचता है ए पोजीशन पे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है? स्मॉल एल है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट कोनिकल पेंडुलम? इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल? इट इज थीटा। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल? इट इज स्मॉल आर। Then we may say that when the bob reaches to the A position, then if suppose we are saying that consider a bob of mass small m, it is
performing the horizontal circular motion in case of conical pendulum, then the weight of the bob, just we are familiar that when the bob reaches to the A position, at that particular A position, how many forces can be acting on that bob? We are saying that two forces are acting. One, the weight of a bob which is acting in the downward direction, and another, the tension in the string. For our convenience, we resolve the tension in the string into the two components. One it is called as a vertical component, that is called as T cos theta, and one it is called as a horizontal component, that is called as a T sin theta. ठीक है? तो इस तरीके से ये कोनिकल पेंडुलम का एक सिंपल सा डायग्राम हो गया। तो इस डायग्राम को बोर्ड के बुक में जो रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोला गया है यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि दो डायग्राम्स आपको बोर्ड के बुक में दिए गए हैं with respect to the inertial frame of reference, with respect to the non-inertial frame of reference। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि inertial frame of reference का डायग्राम यानी क्या, non-inertial frame of reference का डायग्राम यानी क्या। inertial frame of reference में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वो इस कोनिकल पेंडुलम से टोटली बाहर है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है और वो इस कोनिकल पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा गया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस डायग्राम की मदद से हमको दो इक्वेशंस मिलते हैं। पहली इक्वेशन अगर आप केयरफुली यहाँ पे देख रहे हैं तो T sin थीटा आपको सेंटर की तरफ काम करता हुआ नजर आएगा। आप इसको सेंटर को C नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे जो आप यहाँ पे रिजिड सपोर्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे O का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं T sin थीटा, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, T sin theta it is equal to centripetal force. It is called as a centripetal force. We are familiar the formula for centripetal force. It is nothing but mv square by r, और इसी को हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे हमारे लिए जो बोर्ड के बुक में जो कैलकुलेशन करके दिया गया है, ओमेगा का कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, तो इसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर इक्वेशन। अब इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा टेंशन T का, जो कि स्ट्रिंग पर काम करने वाला T cos थीटा, इट कैन बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ दैट बॉब एट द A पोजीशन। तो हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम जैसे बोर्ड के बुक में दिया गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि यही डायग्राम अगर मैं फिर एक मर्तबा यहाँ पे रिपीट करता हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर यही सेम डायग्राम में रिपीट करता हूँ तो आपका ये A पोजीशन हो गया, यही सेम पोजीशन दैट इज mg which is acting vertically downward direction, that is T cos theta, that is the component of the tension. This is L, this is the semi vertical angle for the cone, this is height, this is the radius, and this is the T sin theta component of the tension which is acting towards the center C of the circle। ये आपका बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, ये जो बॉब घूम रहा है तो समझिएगा जो ऑब्जर्वर है इसी पे बैठा है, उस बॉब पे बैठा है। यानी अगर हम किसी चूंटी को कंसीडर करते हैं तो वो चूंटी उस बॉब पे बैठी है, यहाँ पे वो टोटली उसके बाहर है, तो ये बाहर रेस्ट पोजीशन पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पे। तो ये जब इस कोनिकल पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अब कोनिकल पेंडुलम के बॉब का जो मोशन चल रहा है, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, उसी पर कोई चूंटी बैठी हुई है, तो अब ये जो रेफरेंस आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो चूंटी
यहाँ पर इस बॉब पर बैठी है और वो बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो चूंकि क्या एक्सपीरियंस करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हमको दो इक्वेशन मिलेंगे। पहला इक्वेशन मिलेगा T sin थीटा इट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे हमने क्या लिया था, सेंट्रीपिटल, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है। अब लेकिन हमको ये मालूम है कि सेंट्रीपिटल रहने दीजिएगा या सेंट्रीफ्यूगल रहने दीजिएगा, दोनों के लिए फार्मूला सेम आता है। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से T cos थीटा कैन बी बैलेंस्ड बाय mg। यानी आपको बताना मकसद ये है कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्व कीजिएगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से कैलकुलेशन कीजिएगा कोनिकल पेंडुलम के लिए। दोनों के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों केसेस में सेम आने वाले हैं। अब हम आगे के मैथमेटिकल स्टेप या तो इस डायग्राम की मदद से निकाल सकते हैं या तो इसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम अवेलेबल है, तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से भी जा सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से भी जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो डायग्राम अवेलेबल है, इसकी मदद से हम आगे के स्टेप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2। व्हाट वी आर डूइंग, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2। व्हाट इज हैपनिंग, अब हमको क्या मिलेगा, T sin थीटा डिवाइड बाय T cos थीटा इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। That is my equation number 3rd. What I do, dividing equation number 1 by 2. What get cancelled, t get cancelled, mm get cancelled. What is left, sin theta by cos theta, it is tan theta. And what is left here, r omega square divided by g, equation number 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये g यहाँ पे आया, आपको मिला g tan थीटा divided by r, equation number 5. Omega square is equal to g tan theta divided by r. Taking square root on both sides, what we are getting, omega is equal to the angular speed of a bob of a conical pendulum. It is equal to g tan theta divided by r, equation number 6. Now we would like to put the value of tan theta. From where we would like to put the value of tan theta? Just see the diagram here. If I am giving the name OCA, from this triangle we can calculate the value of tan theta. How we would like to calculate the value of tan theta? Just I would like to draw the same diagram. ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल देता हूँ। और एक चीज यहाँ पे बताना रह गया, ये एंगल थीटा है, तो ये एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एडजेसेंट एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। यानी ये थीटा और ये भी थीटा, दोनों डायग्राम में इनर्शियल एंगल हो या नॉन इनर्शियल। अब देखिएगा ये एंगल तो थीटा है हमारा, ये हमारा हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये हमारा पर्टिकुलर ए पोजीशन पे हमारा बॉब है, ये हमारा सेंटर सी है, तो ये बन गया हमारा रेडियस। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, OCA। आई होप सो यू आर गेटिंग क्लियरली, this is height, this is length and this is the radius of that circular horizontal circle. Okay, now what is tan theta from this triangle? Tan theta front side divided by adjacent side, not hypotenuse. tan theta is front side divided by adjacent side. तो इसकी मदद से हमारा tan theta क्या हो गया, r by h, front side divided by adjacent side. This is r by h. Putting the value of tan theta is equal to r by h in the equation number 6, what we are getting? Just we are getting very simply omega is equal to under root, this is under root g by r multiply by, what is the value of tan theta from this diagram? It is r by h. This is r by h. Therefore r get cancelled. Therefore what is left?
only in the square root. It is very simple, g by h, under root g by h. So this is a formula to calculate the angular speed of a bob of conical pendulum. Just we are giving the equation number 7. तो यहाँ तक पूरी उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में हमने यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी टी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप बोर्ड का बुक देख रहे रहेंगे तो यहाँ टी की जगह T0 का इस्तेमाल किया गया, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पीरियड के लिए मैं T1 का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बेसिकली पीरियड के लिए कैपिटल T इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस डायग्राम में हमने ऑलरेडी T का इस्तेमाल टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे पीरियड के लिए हम T1 का इस्तेमाल करते हैं। तो पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 8, 2 पाई बाय ओमेगा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू आर गेटिंग? T1 इज इक्वल टू 2 पाई। अब ओमेगा ऑलरेडी अंडर रूट जी बाय एच वो डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसको उठाकर न्यूमरेटर में लाते हैं तो आपको मालूम है ये डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू हमने ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो आपका पीरियड का फॉर्मूला क्या बना? T1 period of conical pendulum, T1 is equal to 2 pi under root h by g. This is a formula to calculate the period of conical pendulum, equation number 9. That is a formula to calculate the period of conical pendulum. Now, we would like to put the value of h. From where we would like to put the value of h in the equation number 9? See once again here. ये कहाँ से लिया हुआ है हमने? इस डायग्राम का ये जो ट्रायंगल है OCA, इस ट्रायंगल को अलग से हमने निकाल कर लिया हुआ है। यहाँ पे निकाल कर लेने से हमारे को क्या आसानी होगी कि हम tan थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर अगर हम cos थीटा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि cos थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? h by small l. Therefore what is h? Small h is equal to L cos theta. What is the value of h you are getting from the figure? Very simple, small h is equal to L cos theta. Put the value of h in the equation number 9. Finally you are getting the period of conical pendulum, that is L cos theta divided by g. So this is the period of conical pendulum formula. That is the equation number 10. So in this bit, what we comes to know? What is simple pendulum? What is conical pendulum? Then how the conical pendulum can be observed in the inertial frame of reference? How it is to be observed in the non-inertial frame of reference? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहने दीजिएगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहने दीजिएगा, दोनों का इस्तेमाल करके हम एंगुलर स्पीड ऑफ ए बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जो कि यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 7 में कैलकुलेट किया हुआ, निकाल सकते हैं। और पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम यानी कोनिकल पेंडुलम के बॉब को एक राउंड पूरा करने के लिए, एक सर्कुलर, एक पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल पूरा करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला T1 is equal to 2 pi under root L cos theta divided by G. So this is regarding the conical pendulum. So it is having the weightage of 3 marks as per the examination point of view. What type of question it will be asked in the examination? Define conical pendulum and derive an expression to find out the angular speed and the period of conical pendulum, which is having the weightage of 3 marks. Okay. So in the today's lecture, this is sufficient for conical pendulum explanation. Inshallah, in the next lecture, we will continue the next bit of the rotational dynamics. Thank you.